So hello students, now we are going to start the MCQ on ecosystem chapter. So let us see the first question. Today's first question is, what is ecotone? What is ecotone? Options are polluted area, option 2 bottom of lake, option 3 transition zone between two communities, option D developing community. Okay, let us solve this question. इकोटोन क्या होता है? इकोटोन क्या है? ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टू कम्युनिटी. सपोज दिस इज one community, this is another community. Okay, here one species is present, here one species is present, and in the overlapping zone, जो ओवरलैपिंग जोन है, इस ओवरलैपिंग जोन में जो स्पीशीज होते हैं, द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टू कम्युनिटीज, इट शुड बी कॉल्ड एज इकोटोन. इसी को हम इकोटोन बोलेंगे. राइट आंसर इज सी ऑप्शन. Ecotone is transition zone between the two communities, and the species present in ecotone are called edge species. What are edge species? The species found in ecotone are called edge species, and the process is called edge effect भी बोलते हैं. देखिए edge effect. तो एग्जाम में बहुत सारे वर्ड्स हैं, अल्टरनेट वर्ड्स. इकोटोन पूछ सकता है, ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टू कम्युनिटीज, या एडज स्पीशीज. जो इकोटोन में स्पीशीज होते हैं उनको हम एडज स्पीशीज बोलते हैं. एंड द प्रोसेस ऑफ लोकेशन ऑफ एडज स्पीशीज इन द इकोटोन एरिया is called edge species. Actually, in this overlapping zone there will be more species. The presence of more species in ecotone area is called edge effect. Okay, the best example of ecotone is estuary. एश्यूरी जो है एक बेस्ट एग्जाम्पल है इकोटोन का. एश्यूरी कैसा बनती है? एश्यूरी इज फॉर्म बाय द फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर मिक्सिंग. द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द फ्रेश वाटर और मराइन वाटर, दैट विल बी कॉल्ड एश्यूरी. उसको हम इकोटोन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. Adaphic factor refers to किसको बोलेंगे हम एडाफिक फैक्टर? ऑप्शंस आर लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल. एडाफिक फैक्टर, एडाफोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सॉइल. एडाफोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल. पेडोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. तो इसको बोलेंगे हम एडाफिक फैक्टर रेफर्स टू सॉइल. इवन सॉइल स्टडी को हम पेडोलॉजी भी बोल सकते हैं, एडाफोलॉजी, पेडोलॉजी, बोथ आर इक्वल. एडाफोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल, पेडोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल. स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, को हम क्या बोलेंगे? पेडोजेनेसिस बोलेंगे. ओके, आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन, photoperiodic effect, the duration of light decide the time for flowering, and photoperiodic effect is also decide the time for foraging, the time for migration in case of animals, birds. टेम्परेचर तो सबसे इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ. वाटर इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट मीडियम फॉर द अकरेंस ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन. हमारे जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, दोज रिएक्शन, डाइजेस्टिव रिएक्शन फॉर एग्जांपल, स्टमक में रिएक्शन, इंटेस्टाइन में, ऑल दोज रिएक्शन रिक्वायर वाटर.
So that's why our digestive enzymes, हमारे digestive enzyme को क्या बोलेंगे हम? Hydrolases बोलेंगे, hydrolases. The enzyme which work in water presence, they are called hydrolases. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है, approximately how much of the light energy converted into chemical energy in plants? Approximately how much of PAR, how much of PAR absorbed by plants? तो ऑप्शंस हैं लेस देन 50%, more than 50%, 2 to 10% या 1%. So total emitted light from the sunlight, सन से जितनी भी लाइट आ रही है from that less than 50% is PAR. टोटल सनलाइट, फॉर एग्जाम्पल ये टोटल सनलाइट है, उसमें होता है लेस देन 50% PAR, that is photosynthetically active radiation, the light which is essential for photosynthesis, which is good for photosynthesis. And remaining out of this less than 50% PAR, whether plants absorb all that, ये एक plant है, whether all plants are absorbing PAR, less than 50% जो total PAR है, whether that is absorbed by the plant, no, not at all. Plants absorb 2 to 10% of PAR, 2 to 10% of PAR absorbed by plants, absorbed by plants बोलना चाहिए, ठीक है. So right answer for this question is 2 to 10% of PAR absorbed by plants. And if a question, how much percentage of absorbed PAR is converted into chemical energy, तब बोलेंगे 1%. 1% of absorbed light energy is converted into chemical energy. एनर्जी पूछेंगे तो 1%. एनसीईआरटी में क्लियरली मिलेगा आपको. टोटल सनलाइट का लेस देन 50% PAR है, 2 to 10% अब्सॉर्ब होता है, 1% एनर्जी में कन्वर्ट होता है. दैट इज द कॉन्सेप्ट. ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 says, the zone at the edge of lake, the zone at the edge of a lake, lake or ocean, which is exposed to air, which is exposed to air, and is immersed in water, and is immersed in water. वेरी गुड क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ जरूर सीखने मिल रहा है यहाँ पर. इसको हम क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन है लिम्नाटिक जोन, पहला ऑप्शन लिम्नाटिक जोन है. सेकेंड ऑप्शन इज बेंथिक जोन, बेंथिक जोन. थर्ड ऑप्शन लिटोरल जोन, littoral zone. Fourth option is profundal zone. So this is a very good question, conceptual. So here the zone at the edge of a lake or ocean which is exposed to air and is immersed in water, इसका आंसर हम कैसे लेंगे? देखिए, so if you draw a lake or ocean, जैसे यहां पर एक मैं डायग्राम बनाता हूं. देखिए, सपोज एक पॉन्ड है, ये सपोज पॉन्ड है या एक वाटर बॉडी है, ठीक है. सो द पार्ट ऑफ द
pond which is receiving sunlight, that is called limnatic zone. लिम्नाटिक जोन मतलब जिसमें लाइट प्रेजेंट है, जहां तक सनलाइट पहुंच रही है, द जोन एट विच सनलाइट इज अवेलेबल, दैट इज लिम्नाटिक जोन. ठीक है. उसके बाद सेमी डार्कनेस, प्रोफंडल जोन. डार्क ही रहता है प्रोफंडल जोन, सनलाइट इज नॉट अवेलेबल देयर. उसके बाद बॉटम ऑफ द पॉन्ड और एनी वाटर बॉडी, इट इज कॉल्ड बेंथिक जोन. सो नोट करेंगे सारे बच्चे. लिम्नाटिक मीन्स वेयर सनलाइट इज अवेलेबल, द पार्ट ऑफ द ओशन वेयर सनलाइट इज अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड लिम्नाटिक जोन. उसको हम लिम्नाटिक जोन बोलेंगे. एंड द पार्ट वेयर सनलाइट इज absent, that is called profundal zone. and the bottom is called benthic zone. बॉटम को क्या बोल रहे हैं हम? बेंथिक जोन बोल रहे हैं. अब क्वेश्चन पे आइए. क्वेश्चन बोल रहा है द जोन एट द एड्ज ऑफ ए लेक. द जोन एट द एड्ज ऑफ ए लेक मतलब यहां पर ये जोन के बारे में पूछा जा रहा है. एट द एड्ज ऑफ ए लेक विच इज एक्सपोज टू एयर एंड इज इमर्स्ड इन वाटर. कभी कभी यहाँ पे वाटर भी रहता है, कंपलसरी यहाँ पे वाटर तो रहेगा ही, बिकॉज इट इज द बॉर्डर ऑफ द ओशन है या रिवर है. सो दिस जोन इज कॉल्ड लिटोरल जोन. लिटोरल जोन समझ गए सब बच्चे? लिटोरल जोन लेना है आंसर इसको. एक क्वेश्चन में यहां पर देखिए हम चार चीजें सीख रहे हैं. एक तो लिम्नाटिक जोन वेयर सनलाइट इज अवेलेबल, प्रोफंडल जोन डार्कनेस, बेंथिक जोन बॉटम ऑफ द ओशन, लिटोरल जोन एड्ज ऑफ ए लेक और ओशन. एड्ज कॉर्नर जो होते हैं उसको हम लिटोरल जोन बोलेंगे. ठीक है. अगर क्वेश्चन चेंज होकर और एक क्वेश्चन आ जाए, वेयर डू यू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन. फाइटोप्लैंक्टन आपको कहां मिलेंगे? ऑप्शंस आर गिवन, लिम्नाटिक, प्रोफंडल, बेंथिक. व्हाट आंसर यू आर चूजिंग? सबसे ज्यादा आपको फाइटोप्लैंक्टन कहां मिलेंगे? मैक्सिमम फाइटोप्लैंक्टन यू विल फाइंड इन लिम्नाटिक जोन. लिम्नाटिक जोन में सबसे ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन मिलेंगे आपको, क्योंकि लिम्नाटिक जोन में सनलाइट अवेलेबल है. फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन लिम्नाटिक जोन. दैट्स व्हाई अगर क्वेश्चन भी पूछ ले फाइटोप्लैंक्टन वेयर यू फाइंड मैक्सिमम इन नंबर, तो लिम्नाटिक जोन आंसर लेना है. ओके. एंड बेंथिक ऑर्गेनिजम्स. वन मोर क्वेश्चन. देखिए एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं. और एक क्वेश्चन, बेंथिक ऑर्गेनिजम्स आर अफेक्टेड बाय. सो जो बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म है, जो सबसे नीचे रहते हैं, बेंथिक ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली अफेक्टेड बाय सेडिमेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक. अफेक्टेड बाय सेडिमेंटेशन, बिकॉज कंटिन्यूअस सेडिमेंटेशन होते ही रहता है वाटर में. कंटिन्यूअस सेडिमेंटेशन, सपोज देयर इज ए फिश और एनीथिंग एट द बॉटम ऑफ द ओशन, ऊपर से कुछ ना कुछ आ रहा है, नीचे सेडिमेंटेशन हो रहा है. So aquatic life at the benthic zone is mostly affected by, बल्कि पूछेंगे तो your answer should be sedimentation characteristic. Okay, benthic organisms are affected by sedimentation characteristic लेना चाहिए. Let us move to question number 6. Question number 5 करेंगे. Question number 5. Question number 5 is asking here, which of these is not a producer? Which of these is not a producer? इसमें से कौन सा प्रोड्यूसर नहीं है? Not a producer options are Agaricus, Spirogera, Volvox, Nostoc. चलिए इन चारों ऑप्शन के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? What information you are having? Agaricus is nothing but mushroom.
मशरूम मतलब ये एक फंगाई हो जाएगा। स्पायरोगेरा इज अ ग्रीन algae, chlorophyce member. Volvox is also chlorophyce member. क्लोरोफाइसी ग्रीन अलगे। नॉस्टॉक एक ब्लू ग्रीन अलगे हैं, नॉस्टॉक और ब्लू ग्रीन अलगे। सो आप बताइए आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोड्यूसर। फंगाई आर नॉट प्रोड्यूसर, वी नो ऑल। फंगाई आर क्लोरोफिलस हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, दे आर नॉट हैविंग क्लोरोफिल। तो आंसर हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, अगैरिकस इज नॉट ए प्रोड्यूसर, रिमेनिंग ऑल अदर आर प्रोड्यूसर। स्पायरोगेरा इज ए फिलामेंटस ग्रीन अलगे, Volvox is a colonial green algae, colonial. Nostoc एक ब्लू ग्रीन algae है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इज आस्किंग मोस्ट प्रोडक्टिव बायोम, मोस्ट प्रोडक्टिव बायोम। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां होता है इन टर्म्स ऑफ फूड? ऑप्शंस आर गिवन, डेजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कोनीफेरस फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। So we all know that maximum solar energy is received by which part of the biome? Tropical rainforest, they receive maximum sunlight. सबसे ज्यादा सनलाइट गिरती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही, तो इसलिए सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी भी वहीं पे होना चाहिए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर हैविंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी बोल सकते हैं हम, बिकॉज दे आर रिसीविंग मैक्सिमम सोलर एनर्जी। रिमेनिंग अदर ऑप्शन डेजर्ट्स है, कोनीफेरस फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है। डेजर्ट्स में सनलाइट तो बहुत ज्यादा है बट वाटर अवेलेबिलिटी इज वेरी लेस। डेजर्ट्स मीन्स दोज प्लेसेस, डेजर्ट्स का मतलब क्या है, देखिए डेजर्ट के ऊपर अलग क्वेश्चन बन सकता है, वो बता रहा हूं मैं क्वेश्चन। डेजर्ट्स आर द बायोम वेयर evaporation is more, evaporation is more than precipitation. Evaporation is more than precipitation. डेजर्ट्स वो एरिया हैं जहां पर evaporation बहुत ज्यादा है, water gets evaporated and very very less precipitation हो रही है, that is desert. Coniferous forest याद रखेंगे हम, coniferous forest are growing in like Himalaya region where the leaves in the plants are needle shape, having very lesser surface area, reduced surface area है, और leaves are not broader, the leaves are pointed, needle shape structure. Grassland मतलब सावना, grassland को हम क्या बोलना चाह रहे हैं, grassland also called savanna. सावना में क्या होता है, ग्रासेस आर प्रेजेंट एंड वेरी फ्यू स्कैटर्ड ट्रीज आर प्रेजेंट। स्कैटर्ड ट्रीज बहुत ही कम होते हैं, वेरी फ्यू इन नंबर। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 says, decomposers like fungi and bacteria are decomposers like fungi and bacteria क्या होते हैं? ऑप्शंस आर, यहां पर देखिए ऑटोट्रॉफ हैं, decomposers like fungi and bacteria are ऑटोट्रॉफ हैं, दूसरा ऑप्शन सैप्रोट्रॉफ है,
सैप्रोट्रॉफ। तीसरा ऑप्शन है कीमो ऑटोट्रॉफ। या फोर्थ है पैरासाइटिक। सो यू हैव टू चूज हियर करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन दे रहा है यहां पर 1 and 3। 1 and 3। दूसरा ऑप्शन है 1 and 2। तीसरा ऑप्शन है 1 and 4। 2 and 4 लाइक दिस। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या सीखने मिल रहा है हमें। वी आर गेटिंग ए वर्ड कीमो ऑटोट्रॉफ। एक वर्ड सीखने मिलेगा। कीमो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब है द ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल का ऑक्सीडेशन करते हैं और फूड तैयार करते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ। द बेस्ट एग्जांपल आर नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोक्कास, नाइट्रोबैक्टर। दे आर ऑल कीमो ऑटोट्रॉफ। तो डिकम्पोजर्स आर ऑटोट्रॉफ हैं या सैप्रोट्रॉफ हैं। डिकम्पोजर्स आर नॉट ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ नहीं हो सकते। ठीक है। सैप्रोट्रॉफ हो सकते हैं। सैप्रोट्रॉफ दे आर फीडिंग अपॉन डेड एंड डीकेइंग मैटर। कीमो ऑटोट्रॉफ भी नहीं हो सकते। एंड इंस्टेड ऑफ पैरासाइटिक इफ आई राइट हियर ऑप्शन हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक। तो यहां पे 2 and 4 decomposers are saprotroph and heterotroph. So 2 and 4 that is the best option. Fourth option लेना चाहिए आंसर यहाँ पे। saprotroph and heterotroph ले सकते हैं। ठीक है। saprotroph मतलब they are feeding upon dead and decaying matter and decomposers are also dead and decaying matter से फूड ले रहे हैं। they are not preparing their own food. Okay. क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 अभी 7th जो क्वेश्चन करें हम। डिकम्पोजर्स आर बैक्टीरिया एंड फंगाई। दे आर आल्सो कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ। डिकम्पोजर को हम सैप्रोट्रॉफ भी बोल सकते हैं। एंड डिकम्पोजर्स आर ऑल हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। दे आर नॉट प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड दैट्स व्हाई दे आर फीडिंग अपॉन डेड एंड डीकेइंग मैटर। क्वेश्चन नंबर 8 पे जा रहे हैं अब हम। Then which of the following is called as detritivore? Which of the following is detritivore? Which of the following is a detritivore? Options are animal feeding upon dead and decaying matter. Animal feeding upon dead and decaying matter. Feeding upon dead and decaying matter. क्या हम इसको डिट्रिटियोर बोल सकते हैं? Options B is animal feeding upon plant. Animal feeding upon plant. Option C is plant feeding upon animal. Feeding upon animal. As in case of insectivorous plant, जानते होंगे आप। insectivorous कुछ insectivorous plant हैं जो insects को खा रहे हैं, जैसे पिक्चर प्लांट है। they eat upon small insects. या नहीं तो animal feeding upon animal. Animal feeding upon animal. This should be called as a carnivorous animal, है ना। carnivorous बोलते हैं। So यहाँ पे करेक्ट मैच कौन सा हो रहा है? डिट्रिटियोर का मतलब है which feed upon dead and decaying matter. For example, earthworm, termites, they are called. Earthworm, termites are called detritiores. They feed upon dead and decaying matter. डिकम्पोजर में कौन कौन आ रहे हैं? बैक्टीरिया एंड फंगाई। डोंट कंफ्यूज स्टूडेंट। डिकम्पोजर मतलब बैक्टीरिया फंगाई। डिट्रिटियोर्स मतलब अर्थवर्म एंड टर्माइट्स। डिट्रिटियोर्स में आप बैक्टीरिया नहीं लिख सकते। बैक्टीरिया को हम डिकम्पोजर में रखेंगे। माइक्रोस्कोपिक डिकम्पोजर होते हैं।
Detritivore means which feed upon dead and decaying matter, and they are not microscopic. They are larger in size like earthworm, termites. Okay. Question number 9 की तरफ. Question number 9 says फास्ट डिकम्पोजिशन कहाँ होगा? सबसे फास्टेस्ट डिकम्पोजिशन ऑकर इन, fastest decomposition occurs in. Options are Antarctica, Antarctic, या ड्राई एरिड रीजन, ड्राई एरिड रीजन, अल्पाइन रीजन, अल्पाइन रीजन, और एक है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. What is the best option? Where do you find maximum fastest decomposition? सबसे fast decomposition कहाँ होता है? So right answer for this question is tropical rainforest. Why we are taking this tropical rainforest as answer? Because decomposition is a breakdown of dead body of plants and animal into simple inorganic nutrients. Dead body breakdown into carbon dioxide, water and nutrient. That is called decomposition. जितना भी डेड बॉडी का ऑर्गेनिक मैटर है वो ब्रेक हो रहा है. किस में ब्रेक हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट. दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन. एंड फास्टेस्ट डिकम्पोजिशन ऑकर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बिकॉज यहाँ पर होती है ह्यूमिड कंडीशन. ह्यूमिड, मॉइस्चर इज मोर, वार्म कंडीशन भी है यहाँ पर, वार्म कंडीशन भी है, एंड all the conditions are life supporting in case of tropical rainforest. That's why decomposition becomes very fast at tropical rainforest. Decomposition is aerobic process. Decomposition एक aerobic process है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ह्यूमिड कंडीशन में बहुत फास्ट होता है. मॉइस्चर, जहां पे मॉइस्चर ज्यादा है वहां पे डिकम्पोजिशन फास्ट, और जहां पे कंडीशन वार्म होते हैं देयर आल्सो डिकम्पोजिशन इज फास्ट. रिमेनिंग अदर ऑप्शन अंटार्कटिका, एरिड रीजन, यहाँ पे उतना फास्ट डिकम्पोजिशन नहीं होता है. अंटार्कटिक टेम्परेचर इज वेरी लो, ड्राई एरिड रीजन, ड्राई एरियाज हैं, मॉइस्चर बहुत ही कम है. अल्पाइन मतलब माउंटेनस एरियाज, हाई अल्टीट्यूड एरियाज, वहां पे भी डिकम्पोजिशन स्लो रहेगा. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 says insectivorous plant. Insectivorous plants like Nepenthes belongs to trophic level. Belongs to trophic level. Options are T1, option 2 T2, option 3 T3, option 4 T1 and T3. अब ये क्वेश्चन करना है, इंसेक्टिवोरस प्लांट लाइक नेपेंथीज बिलोंग टू विच ट्रॉफिक लेवल. तो सबसे पहले ये बात याद रख लीजिए, नेपेंथीज क्या है? एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है. ओके, दे फीड अपॉन इंसेक्ट्स. ओके, एंड इन दिस इन नेपेंथीज प्लांट इज आल्सो ऑटोट्रॉफिक. इट्स प्रिपेयरिंग इट्स ओन फूड. ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक है, प्रिपेयरिंग इट्स ओन फूड, एंड आल्सो कैचेस इंसेक्ट. ये इंसेक्ट्स भी खा रही है. ईट इंसेक्ट्स आल्सो, ईट इंसेक्ट्स. तो इसलिए जो है इनका ट्रॉफिक लेवल क्या आएगा? इनका ट्रॉफिक लेवल बनेगा T1 एंड T3. दे आर कॉल्ड T1 जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे. जैसे सनलाइट है, दिस सनलाइट इज अब्सॉर्ब बाय नेपेंथिस, तो फोटोसिंथेसिस हो गया, इसलिए T1 बोल रहा हूं. ट्रॉफिक लेवल किसको बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल इज पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन. पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन, नेपेंथिस. अब बहुत सारे ग्रास है, ग्रास खाने के लिए आ रहा है ग्रास हॉपर.
ठीक है, अब ग्रास क्या हुआ, इधर T1 हो गया, ग्रास हॉपर क्या हो गया, T2 हो गया। नेपेंथिस को मैं अभी क्या बोला, T1, बिकॉज इट इज डूइंग फोटोसिंथेसिस। समटाइम नेपेंथिस फीड्स ग्रास हॉपर, ये नेपेंथिस कभी कभी ग्रास हॉपर भी खा लेगा। और एक बार समझा रहा हूं, सुनिए, एक फूड चेन है, ग्रास को खाने के लिए ग्रास हॉपर आ गया, इसलिए मैं T1 T2 लिख दिया। नेपेंथिस को मैं T1 लिख रहा हूं बिकॉज इट इज डूइंग फोटोसिंथेसिस। ओके, T1 मतलब जो भी फोटोसिंथेसिस करने वाले हैं ट्रॉफिक लेवल 1 होते हैं। ओके, वी आर नॉट ट्रॉफिक लेवल 1, नेवर, हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते ना, सो वी आर नॉट T1। अब नेपेंथिस T1 बन गया, वही नेपेंथिस समटाइम बिकम T3 आल्सो। वो कैसे, इफ नेपेंथिस ईट इंसेक्ट्स and that insect is eating another grass insect nepenthes, ऐसा हो सकता है ना, grass eaten by grasshopper is eaten by nepenthes pitcher plant, nepenthes मतलब pitcher plant। तो ग्रास को T1 लिखेंगे, ग्रास हॉपर को T2 लिखेंगे, नेपेंथिस को T3 लिखेंगे। फूड चेन के जो स्टेप्स होते हैं दोज आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। सो नेपेंथिस को हम क्या लिखेंगे फाइनली, इट कैन बी T1 when it is doing photosynthesis, it can be T3 when it is eating insect, just like यूग्लिना भी हम ऐसे ही कुछ पढ़े थे ना, यूग्लिना डे टाइम फोटोसिंथेसिस कर लेता है, नाइट टाइम इट बिकम्स प्रीडेटर, नाइट टाइम में प्रीडेटर, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस करते हैं। सो फॉर वी हैव सीन द क्वेश्चंस ऑन इकोसिस्टम पार्ट 1, वी विल सी द नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस, पार्ट 2 क्वेश्चन, सेकेंड लेवल के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, विल स्टॉप हियर, थैंक यू।